Hello students, I am Monica Gupta from MA International School, NAYAGAON, KOTA. Let's start a new topic which is fractions. Okay, what is fraction? A part or parts of whole or a collection is called fraction. What is fraction? A part or many parts. A part or many parts of a whole or a collection is called fraction. Fraction can be represented as shaded parts upon total parts, shaded parts upon total parts. Shaded parts, basically we called it numerator, or total parts, where do we write total parts, is called as denominator. Let's explain it more. Suppose we have a circle, we divide it into two parts. When we draw a line, when we draw a single line, we divide the circle into two parts. It means, and we shaded the one part, it means it is 1 upon 2. Shaded part upon total part. Shaded part is 1 and total part is 2. 1 and 2. So 1 upon 2, and we call it as 1 half. 1, 2, 3, 4. We again draw a circle and we draw two lines and divided the circle into four parts. Divided the circle into four parts. 1, 2, 3 and 4. Now how to write a fraction? Shaded part upon total part. Now how many parts is shaded? 1. Shaded part is 1, and how many total parts are there? 1, 2, 3 and 4. How to write this fraction? 1 upon 4. 1 upon 4. 1 can be written in numerator and 4 as a denominator. जो shaded part होता है वो क्या होता है हमारा numerator and total part as denominator, and 1/4 can be written as 1/4. Next, 1, 2, 3, 4 and 5. We draw a circle and we divide it into 5 parts. हमने क्या किया? 5 part में divide किया. Now here is only one part shaded, तो कैसे लिखेंगे इसको fraction को? 1 upon 5. How to write it as a fraction? 1 upon 5, or in a numbering way 1/5. अगर यहाँ पे 2 part shaded होते, अगर इस सर्कल में 2 part shaded है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? Which is shaded part upon total part, which is 2 upon 5. और फिर उसको कैसे बोलेंगे? 2/5. कैसे कहेंगे हम इसको? 2/5. So shaded part upon total part, basically it's numerator and denominator. जैसे यहाँ पे 1 upon 2 है, तो 1 क्या है? numerator, and 2 क्या होता है हमारा? denominator. Here again 1 upon 4, 1 is the numerator and 4 is the denominator. 1 upon 5, 1 is the numerator and 5 is the denominator. 2 upon 5, here also 2 is the numerator and 5 is the denominator. Let's solve one question. Suppose I have 15 pens. Now I have 15 pens, out of which 8 are blue. मेरे पास कितने पेन्स है टोटल? 15 पेन्स है मेरे पास, जिसमें से 8 कौन से कलर के? ब्लू कलर के. Now fraction of pens which are blue is, अब टोटल कितने पेन्स है? 8. 15 पेन्स है, 8 पेन्स ब्लू हैं. अब ब्लू पेन्स का फ्रैक्शन कितना होगा? इट मीन शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट. टोटल पार्ट कितना है अपने पास? टोटल पेन कितने हैं हमारे पास? 15, जो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. एंड ब्लू पेन्स कितने हैं? विच आर 8. 8 गोज एट द न्यूमरेटर्स प्लेस. सो द फ्रैक्शन ऑफ पेन्स विच आर ब्लू इज 8 upon 5. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. More about fractions. Now let's study more about fractions. There are many types of fraction: unit fractions, like fractions, unlike fractions, equivalent fractions, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Now what are unit fractions? Unit fractions are those fractions which have a numerator 1. Fractions with numerator 1 are called unit fractions. Unit fractions क्या होते हैं? जिसके न्यूमरेटर प्लेस पे वैल्यू क्या हो? 1. न्यूमरेटर प्लेस पे कौन सा नंबर हो? 1. वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं? हमारे यूनिट फ्रैक्शन. सपोज वी हैव अ सीरीज ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस. 1 upon 2, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 1. 1 upon 4, वी हैव अ न्यूमरेटर 1. 1 upon 9, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 1. एंड 1 upon 11, वी हैव अ न्यूमरेटर 1. Like fractions. Now what are like fractions? Like fractions are those fractions with the same denominator. Like fractions क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम हो. आपके पास फ्रैक्शंस की एक सीरीज है, 3 या 4 फ्रैक्शंस आपके पास है. उन सबके अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स मीन्स नीचे वाली वैल्यू सेम है सबके, तो वो कौन से फ्रैक्शन होंगे? लाइक फ्रैक्शंस. 1 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7. सबके देखो, सारे फ्रैक्शंस में एक फ्रैक्शन की सीरीज है. इन सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम है. 1 upon 7 में 7, यहाँ 7, इस फ्रैक्शन में भी 7, एंड देयर इज ऑल्सो 7 इन दिस फ्रैक्शन. So it means these fractions are considered as like fractions. Like fractions क्या होते हैं? Fractions with the same denominator.
नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस, ऑफ कोर्स इसका अपोजिट, जैसे लाइक फ्रैक्शंस क्या आता है जिसमें सेम डिनोमिनेटर थे, अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अगर आपके पास फ्रैक्शन की एक सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होना इज इट मीन्स वो कौन से फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/8, 4/5, 1/7, 6/10। आप देखो आपके पास जो फ्रैक्शन की सीरीज है सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 8, 5, 7 एंड 10, तो इट मीन्स दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल, वो क्या होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 1/4 इज इक्वल्स टू 2/8, क्या ये इक्वल है? दिखने में तो आपको इक्वल नहीं दिख रही है क्योंकि 1/4 एक अलग फ्रैक्शन है, 2/8 इज अ डिफरेंट फ्रैक्शन। बट कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लोएस्ट नंबर तक कट करते हैं। लोएस्ट नंबर तक कैसे कट करेंगे, अगर हम इसको 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, तो बेसिकली क्या हो गया, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो ऐसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 1/8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू 8। क्या हो गया ये, इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Proper fractions are those fractions which have the less numerator than the denominator. Proper fraction क्या होता है, proper fractions वो होते हैं जिनका numerator denominator से small होता है, जिसके numerator की value denominator की value से small होती है। Suppose we have 3 fractions, 1/3, 4/8, 11/17। Proper fraction क्या होता है जिसके numerator value small होती है as compared to denominator। आप इन तीनों fraction में देखो, 1 is smaller than 3, 4 is smaller than 8 and 11 is smaller than 17. It means these are proper fractions. Improper fractions are those fractions, जैसे improper में आपका क्या था, न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल थी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर वैल्यू आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा बड़ी होती है। 7/3, 11/5 एंड 25/4। आप देखो 7 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। 11 इज ग्रेटर देन 5, अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। 25 इज ग्रेटर देन 4, अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, improper fractions that can be expressed as a whole number and a proper fraction. मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो improper fraction that can be expressed as a whole number. Suppose we have a fraction 5/4, improper fraction है। कैसे improper fraction है, because denominator क्या है हमारा, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। 5/4 है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। 5/4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4। ये क्या हुआ हमारा मिक्स फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ होल। होल मीन्स 1 हमने यहाँ पे लिखा एज अ होल नंबर एंड 1/4 वी राइट इट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना भी सीखा था, किसी नंबर को आप, किसी सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। बट फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है उसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। कैसे कंपेयर करते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। रूल 1, बाय अप्लाइंग 2 रूल्स। रूल 1, व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर्स इज ग्रेटर। देखो अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे न्यूमरेटर्स सेम है, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, आपको जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं, अगर उनके न्यूमरेटर्स की वैल्यू सेम है, व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम
द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर्स इज ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है तो डिनोमिनेटर की स्मॉलर वैल्यू वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। When the numerators are same, the fraction with smaller denominator, जिस smaller denominator की वैल्यू क्या होगी, greater. Suppose we have question 3/7 and 3/5. Numerators आपके सेम है, here is also 3, here is also 3. Numerators सेम है, डिनोमिनेटर की कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, 7 और 5. 5 is smaller than 7. 5 की वैल्यू कम है, it means this fraction is greater. 5/6, 5/7. न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी सेम है, न्यूमरेटर्स आपके सेम है, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर, स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, 6 और 7. 6 is the smaller denominator, it means 5/6 is greater than 5/7. Fraction 5/6 is greater than fraction 5/7. Fraction 3/5 is greater than fraction 3/7. Now rule 2, when the denominators are same, ये हमने rule 1 स्टडी किया था, जब न्यूमरेटर सेम होंगे। ये कहाँ अप्लाई होगा, जब न्यूमरेटर सेम होंगे। तो कैसे फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होगी। नाउ व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो जो न्यूमरेटर बिगर वैल्यू में है, जो आपका न्यूमरेटर बिगर वैल्यू में है, वो ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। Suppose we have a question 3/5 and 2/5. Now we have the same denominator, 5 and 5 we have the same denominator, but the fraction with the bigger numerator. 3 is bigger than 2, it means 3/5 is greater than 2/5. Similarly 25/42 and 32/42. Now denominators are same, 42 and 42. When the denominators are same, the fraction with the bigger numerator, it means 32 is bigger than 25, so fraction 32/42 is greater than fraction 25/42. Now arrange some fractions in ascending order. Ascending order we all known about it, smallest to largest और smallest to biggest. Ascending order में कैसे हम अरेंज करते हैं किसी भी नंबर की सीरीज को, from smallest number to biggest number. Now we have a series 3/8, 1/8, 7/8 and 6/8. इसको हमें ascending order में अरेंज करना है। Ascending means smallest to biggest. देखो डिनोमिनेटर सेम है सबके, जब डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। नाउ 1/8, 3/8, 6/8 and 7/8. When the denominators are same, the fraction with bigger numerator are the biggest or are greater. जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट होता है, ग्रेटर होता है। सो 1/8 is smaller than 3/8, 3/8 is smaller than 6/8 and 6/8 is smaller than 7/8. So इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज करते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट इज 1/8 एंड बिगेस्ट इज 7/8। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या सीक्वेंस होता है, फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी तक हमने होल नंबर्स में करा था डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बट फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं ना, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या है, देखो जो भी फ्रैक्शन की सीरीज है 3/8, 3/5, 3/7 एंड 3/4. नाउ वी हैव द सेम न्यूमरेटर. जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है. नाउ स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है इसमें, 3/4. स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है, 3/4. सो विथ 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5. 4 के बाद देखो 5, then 3/5, 3/7, 3/7, then 3/8, 3/8. So it means 3/4 is greater than 3/5. हमने कैसे अरेंज किया, देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट.